وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، مفتی سلمان رضوی صاحب نے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ آئیے چلیے اس کو سماعت فرماتے ہیں ہم لوگ۔ ہی پھنسے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا معجزہ معراج کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ سارے کام ہیں جو معجزہ کہلاتے ہیں، اور معجزہ عام انسانوں کی عقل میں نہیں آتا۔ تو جب یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو معراج کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ پورے معراج کا سفر تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ معراج کا واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہر سال آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے۔ اور اس واقعے میں کوئی بھی پرانی بات یعنی پرانا پن نہیں آئے گا، جتنی بار سنیں گے ہر بار لذت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ کبھی پرانا ہوا ہے؟ تو پرانا لیکن لگتا نہیں پرانا۔ اتنے سارے لوگ کبھی آ کر امام صاحب سے یہ کہتے ہیں روز آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ نیا پڑھو؟ نہیں کہتے، سب وہی سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے۔ جتنی بار سنو گے لذت بڑھتی جائے گی۔ وہ دنیا کے ڈھکوسلے گانے ہیں جن کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نئے ڈائلاگز آئیں گے، فلمیں آئیں گی، گانے آئیں گے، چند دن ان کی خوب دھوم دھام لوگ اپنی زبانوں پر جلا رہے ہوں گے، لیکن ایک جنریشن بھی ختم نہیں ہوتی کہ وہ گانے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کو جاننے والا بھی اور ان کو یاد رکھنے والا بھی نہیں رہتا۔ لیکن قرآن کریم بھی یہ معجزہ ہے، میرے نبی کے تذکرے بھی ایسے معجزے ہیں، ہر آنے والا بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے اور سناتا بھی رہتا ہے، اور پرانا کبھی نہیں لگتا۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک کہانی آپ 2-3 بار سنو تو آپ کو اکتا ہٹائے گی۔ انسان کی طبیعت میں ایک کہانی اگر بار بار سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہر سال سنو، ارے صرف مزہ نہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کربلا کے واقعات جب جب سنتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، غم آ جاتا ہے۔ کیوں؟ حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہ جتنی بھی ترقی کرتے جاؤ، دنیا جتنی بھی آگے بڑھ جائے، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ہر دور کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔ آج بھی اگر ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اگر ایک بار میں میرے نبی کے حسن کی بات کروں تو سب مچل جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کہ نیا ہے، یہ سنا ضرور ہے آپ نے، لیکن پھر میں اگر کہوں تو مچل جائیں گے۔ ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی طبیعت میں روز دال چاول بھی کھانا پسند نہیں کرتا، روز گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا، ایک کپڑے پر بھی روز نہیں رہتا، اس کو ہر دن نیا چاہیے۔ لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ بندہ یہی کہے گا وہی سناؤ جو صحابہ سناتے تھے، نیا الگ سے مت لاؤ، وہی سناؤ جو نبی کے صحابہ کہتے تھے۔ ابھی میں آپ کو کہوں، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور رسول اللہ کے صحابی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عربی شعر ہے، آج بھی یاد ہے، لوگ جھومتے ہیں۔ کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے؟ میرے نبی کو دیکھ کر آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ توجہ، حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ارے حسان تم نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی اور خوبصورت؟ حسان بن ثابت نے کیا کہا اپنے شعر میں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو، مدینے میں آ گئے، اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے، تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو۔
हस्सान बिन साबित ने दूसरे ही शेर में कह दिया, वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं है। मेरी आंखों ने नहीं देखा, इतना ही नहीं, किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, आप ऐसे ऐबों से बेऐबन से अल्लाह ताला ने पाक पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी और मंशा है। इसी को बरेली के इमाम ने यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां के गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। हुजूर, दुनिया के सारे फूल कांटों से भरे हुए होते हैं, खार कहते हैं कांटा। जो भी फूल है खूबसूरत तो होता है लेकिन कांटे होते हैं साथ में, लेकिन आला हज़रत कहते हैं हमारा फूल वो है, यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हाँ, हुजूर को तशबीह दी शम्मा से, लेकिन शम्मा जहां भी जलती है ना, चिराग, उसके आसपास धुआं होता है। धुआं जो है आदमी को थोड़ा सा परेशान करता है। चिराग तो अच्छा है, रोशनी दे रहा है, लेकिन धुआं परेशान करता है। आला हज़रत कहते हैं मेरे नबी की जो शमा है, हुजूर को जो तशबीह दी शमा से, यही वो शम्मा है कि धुआं यहां नहीं है, जो आएगा वो देखता ही रहेगा। अजीजान गिरामी वक़ार, तज़किरा मुस्तफा कभी पुराना नहीं होता। सफर मेराज भी कयामत तक पुराना नहीं होगा। मेरा खुद का सफर या आपका किसी का सफर 2-4 बार बयान कर दो, देखो लोग कहेंगे बस करो मौलाना, कितनी बार बोलते, कितनी बार बोलोगे, सुन तो लिया हमने, लेकिन नबी के सफर को कहो, आप कहेंगे और बोलो और बोलो। वजह क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने रूहों को लज्जत मेरे मुस्तफा के जिक्र में रखी है। हमारे जहन और हमारे कुलूब की लज्जत अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के जिक्र में रखी है, और इसीलिए मेरे आका के जिक्र से कभी कोई परेशान नहीं होता। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र के लोग, इजिप्ट के, अरबी पैदाइशी अरबी है, मादरी जुबान अरबी है। हमारे उस्ताद मौलूद की महफिल करते थे, हर जुमा को हम भी जाते थे, और जब उनकी महफिल खत्म होती, हम हिंदुस्तानी तलबा जो पढ़ने के लिए वहां थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, इंडोनेशी, मालयशी, सब सारे लोग आते थे। मौलूद की महफिल अरबी में होती, और जब महफिल खत्म हो जाती तो वो शेख ये कहते कि इंडियन स्टूडेंट्स कौन है यहां पर, हिंदुस्तानी तलबा कौन है? हम खड़े होते, कहते वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम पढ़ते थे, पूरा सलाम पढ़ लेते थे, वो खड़े झूमते रहते थे, उनको समझ में कुछ नहीं आता। अरबी लोग हैं, अरबी लोग हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम हम पढ़ करके आते। एक दिन मैंने पूछा था, उस्ताद जी आपको समझ में आता है ये कि ये पूरा सलाम जो हम लोग पढ़ते हैं आप क्यों बार बार कहते हैं? उन्होंने कहा इश्क के लिए समझ की जरूरत नहीं होती। जिस जुबान में बंदा आशिक होता है वो पूरी दुनिया को कायल करके रहता है, पूरी दुनिया को कायल करके रहता है। मेरे अजीजों, एक वाकया भी मुझे याद आता है। मुंबई की सरजमीन पर केरला के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 93 में आप इधर मुतवज्जो रहे, महफिल इस तरफ रहे। केरला की जुबान तो आप जानते हैं मलयालम, वो ऐसे बाउंस जाएगी कि आपको समझ में ना आए। मलयालम, हम हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इतनी कड़क जुबान है कि जल्दी लोगों के समझ में नहीं आती। लगता है यहां ट्रस्टी ज्यादा हैं बिठाने वाले। बहरहाल एक आदमी काफी है बिठाने के लिए, बाकी सारे लोग खुद बैठ जाएंगे, बच्चे तो नहीं है। आप तवज्जो रखें, महफिल को डिस्टर्ब ना करें। दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं बात कह करके आगे बढ़ जाता हूं। बड़े आलिम दीन थे। 93 में मैंने अपने बड़ों से सुना कि वो आए और स्टेज लगा और मलयालम में वो बयान करते, उनका जो जज्बाती बयान था लोगों में मशहूर था। मैं नाम नहीं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन एक ट्रांसलेटर हाथ में खड़ा रहता था, वो मलयालम में बोले, उसके बाद ये ट्रांसलेट करे, फिर वो बोले, फिर ये ट्रांसलेट। हैरत की बात है, हैरत की बात है।
मुंबई के इलाके के वो महफिल आज भी लोगों के जहन में है। लोगों ने ट्रांसलेटर से कहा तू बैठ जा, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, उनको उन्हीं की जुबान में बयान करने दो, इसलिए कि वो जो इश्क की बात कर रहे हैं समझ तो कुछ नहीं आता, उनके जज्बात देख करके दिल में मचल होती है। बहुत सारी जगहों पर बॉडी लैंग्वेज ही इश्क फैलाती है। बहरहाल हमारी गुफ्तगू इधर उधर ना जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हुजूर का तज़किरा कभी पुराना नहीं होता और कभी उसको ट्रांसलेट की भी ज्यादा जरूरत नहीं आती। आप सोचो अफ्रीका में इस्लाम आया कैसे, यूरोप में इस्लाम आया कैसे, इनकी जुबानें अरबी नहीं थी और रसूलुल्लाह के सहाबा के दौर में ईमान आया है, इस्लाम आया है। सहाबा जो मदीने से निकले थे अफ्रीका के जंगलों का सफर किए, बर्बर कौम जो दुनिया में जुल्म में मशहूर थी, इंसानों को काट खाने वाले लोग थे, अफ्रीका में जंगल में रहने वाले लोग जो कपड़े तक नहीं पहनते, उनके दरमियान भी सहाबा ने इस्लाम की तबलीग फरमाई। यूरोप के बाशिंदों में इस्लाम गया कहां से? सहाबा की जुबान से। हिंदुस्तान में भी इस्लाम पहले आया है तो सहाबा इकराम यहां पर भी आए, हिंदुस्तान में आए। जुबानें बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इस्लाम फैला कैसे? एक बात याद रखो, हुजूर के इश्क के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को ऐसा मुसख्खर कर दिया है, अरे बेजुबान भी हो तो मेरे नबी की मोहब्बत फैला के जाता है। गूंगा भी आशिक रसूल हो तो उसके चलने फिरने से अल्लाह ताला खुशबुएं फैला देता है। बात है मेरे नबी के तज़किरे में अल्लाह ने वो जमाल वो कमाल रखा है। आज दुनिया भी हमें देखने आती है तो उसी जमाल और उसी कमाल की निस्बत का असर है, बाकी कुछ नहीं। हम अपने घर के किस्से बयान करने लगे तो कौन सुनने वाला है? नबी की बात करते हैं इसलिए मजमा उम्र करके आता है, इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। और आला हजरत ये कहते हैं बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। अल्लाह ताला कभी उनके बगैर कुछ अता करे ऐसा होगा नहीं। और आला हजरत ने जिक्र खुदा किसको कहा है? जिक्रुल्लाह क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यह जिक्र है। जिक्र की महफिलें कायम होती। आला हजरत कहते हैं कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, यानी हुजूर को छोड़ करके अगर तुम कहते हो कि जिक्र खुदा ये है, अल्लाह का जिक्र ये है, आला हज़रत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। सकर कहते हैं जहन्नम को, कुंजी चाबी को। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जिक्र हक है ही नहीं है, ये तो जहन्नम की चाबी है जो तू कर रहा है। जिक्र खुदा भी वही होगा जो जिक्र मुस्तफा के साथ होगा, वरना आज हम सफर मेराज पर अभी शुरू ही नहीं हुए। मैं चंद बातें आपको जहन करीब करने के लिए, इसलिए कि हम हथौड़ा उसी वक्त मारते हैं जब लोहा गर्म हो जाए। सुनिए, सफर मेराज को नमाज में जो इनकार करता है वो इनकार करता ही रह जाएगा। नमाज पढ़ते हैं सारे लोग और नमाज में आते हैं और जैसे ही आप 2 रकात में बैठते हैं अत्तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। कादा आपके लिए कादा जरूरी है, बगैर कायदे की नमाज भी नहीं, और उसमें अत्तहियात वाजिब है। तो जब पढ़ते हैं आप तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ठीक है, ये पढ़ते हैं अत्तहियात। फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर पढ़ते हैं आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, हम अपनी तरफ से सय्यदना का इस्तेमाल करते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु भी पढ़ा जा सकता है। बहरहाल 4 जुमले हैं पूरे ये अत्तहियात में, उसके बाद का जो है वो दुरूद है। ये 4 ही जुमले तो हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात एक जुमला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दूसरा जुमला, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन तीसरा जुमला, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, ये जो कलमा है ये चौथा है। 4 जुमले हैं अत्तहियात में। असल में आपको पता होना चाहिए यही पूरा मेराज है, पूरा मेराज है ये।